Good morning, student. My name is Nitiksha Kadu from your computer department. This is the third lecture of our object-oriented programming using C++. Okay. Now, in previous lecture, we started our unit number 1, that is principle of object-oriented programming. Okay. So this is the third lecture of this unit. Now, in previous video, we learned about the object-oriented programming and procedure-oriented programming. Then we learn about the basic concept of our object-oriented programming. There is object, class, then data abstraction, data encapsulation, polymorphism. Okay, so these are all the concepts that we learn in our previous lecture. Now, for today's topic, there is what is dynamic binding, then message passing, benefit of object oriented programming, then application of object oriented programming, then what is C versus C++, structure of C++ program, and key concepts. Okay, now first we will start with our what is dynamic binding. Now what is dynamic binding? The dynamic binding is known as a dynamic dispatch. It is also known as a dynamic dispatch. It is the process of linking processor call to the specific मेथड रन टाइम. इसमें क्या होता है, जो प्रोसीजर कॉल रहता है उसको स्पेसिफिक मेथड के साथ लिंक करता है एट अ रन टाइम. रन टाइम पे वो प्रोसीजर कॉल को मेथड के साथ लिंक करता है. सो इट मीन्स द कोड टू बी एग्जीक्यूट फॉर अ स्पेसिफिक प्रोसीजर कोड इज़ नॉट नो अनटिल द रन टाइम. मतलब जो प्रोसीजर कॉल है उसके लिए जो भी कॉल एग्जीक्यूट करना है वो रन टाइम तक उनको पता नहीं रहता है. ओके, सो इट लिंक द प्रोसीजर कॉल विद द मेथड एट द रन टाइम ओनली. ओके, सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ लेट बाइंडिंग एंड रन टाइम बाइंडिंग. इट इज़ नोन एज अ लेट बाइंडिंग एंड run time binding. Okay, now here the dynamic dispatch is generally used when the multiple classes contain the different implementation of the same method, that is your polymorphism. Okay, ये dynamic dispatch कब यूज होता है कि मल्टीपल क्लासेस के बाद सेम मेथड के डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन होता है. ओके, देन वी कैन यूज दिस डायनेमिक dispatch that is used to link the processor call with a specific method, okay, at the run time. It is the important feature of our C++. Okay, so ये था हमारा dynamic binding, and that is match code matching the object under the current reference will be called. Okay, at the run time it link the processor call with the specific method. Then our next topic, that is message passing. Okay, now what is message passing? Message passing is a form of communication between the object, process or other resources used in object oriented programming, then internal process communication and parallel computing. Okay, ये क्या है? मैसेज पासिंग इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन करने का एक फॉर्म है. ओके, सो इसमें क्या रहता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है, प्रोसेस है एंड रिसोर्स है, दे कैन बी इंटरकनेक्टेड और कम्युनिकेट विथ ईच अदर. नाउ हियर द मैसेज पासिंग कैन बी सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस. मैसेज पासिंग कैसे होता है? वे सिंक्रोनस और असिंक्रोनस. सो इन सिंपल वर्ड यू कैन से दैट मैसेज पासिंग इज नथिंग बट द सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन बाय द ऑब्जेक्ट सेम एज अ पीपल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन. ये क्या है कि मैसेज पासिंग को हम लोग सिंपल वर्ड में क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोग एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं. ओके, जैसे आप लोग आपके फ्रेंड के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, वैसे ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता है. दे कैन सेंड एंड रिसीव द इन्फॉर्मेशन विथ ईच अदर. ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ मैसेज पासिंग. ओके, मैसेज पासिंग. ओके, नाउ यहाँ पे सम बेसिक स्टेप है फॉर मैसेज पासिंग के. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट द क्लास that define the object and its behavior. पहले क्या करना है, आप लोग को मैसेज पास करना है तो पहले आप लोगों को एक क्लास क्रिएट करना पड़ेगा और उसमें आपको ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ेगा और उसके बिहेवियर मीन्स उसके मेथड. देन क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लास डेफिनेशन. इस आप लोग को एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा. देन एस्टेब्लिश द कम्युनिकेशन अमॉन्ग ऑब्जेक्ट. फिर पहले एक तो क्लास क्रिएट करो, देन ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, फिर वो उस ऑब्जेक्ट के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ मैसेज पासिंग. नाउ हियर द इन ओपी
Message passing involves specifying the name of the object and the name of the function and its parameter as the information. For example, एक आपल्याकडे माझं मेथड है ड्रॉ करके, ओके, पर विद द हेल्प ऑफ दिस ड्रॉ मेथड यू कैन ड्रॉ द शेप लाइक सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल. तो आप लोग को क्या करना है कि किस टाइप का आप लोग को ऑब्जेक्ट है वो आप लोग को स्पेसिफाई करना है. उसमें क्या क्या रहेगा, एक तो पहले ऑब्जेक्ट रहेगा, देन मैसेज रहेगा और इंफॉर्मेशन. ओके, सो ये था हमारा मैसेज पासिंग दैट इज़ यूज फॉर द कम्युनिकेटिंग बिटवीन द ऑब्जेक्ट. देन our next topic that is benefit of object oriented programming. Now हम लोग ने देखा कि object oriented programming that is basically based on the object. तो उसके benefit क्या है? Now this object oriented orientation contribute to the solution of many problems associated with the development and quality of the software product. वो क्या करता है कि because of this object orientation it give the solution of the problem that is associated with the development. जो development and quality में जो भी problem है वो उससे solve हुई है with the help of this object orientation. So the principal advantages are, the first one, through inheritance we can eliminate the redundant code and extend the use of existing classes. मतलब एक तो हम लोग ने देखा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल का एक फीचर कौन सा है, उसका इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस से क्या होता है कि कोड का रिडंडेंट, मतलब आप लोग को क्या हो गया, सेम कोड बार बार लिखना पड़ता है ना. तो इनहेरिटेंस से क्या करेंगे, आप लोग वो पेरेंट क्लास बनाएंगे, उसमें वो उसके जो भी कॉमन फीचर है वो लिखेंगे. तो आपको चाइल्ड क्लास में वो फिर से वो फीचर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्टली वहाँ से इनहेरिट कर सकते हो. सो ये रहा आपका, आप लोग जो कोड का रिडंडेंट मतलब रिपीटेशन है वो आप लोग अवॉइड कर सकते हो. ओके, देन नेक्स्ट है हमारा, वी कैन राइट अ प्रोग्राम फ्रॉम द स्टैंडर्ड वर्किंग मॉड्यूल. विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप लोग प्रोग्राम लिख सकते हो विद द स्टैंडर्ड वर्किंग मॉड्यूल. द नेक्स्ट वन, द प्रिंसिपल ऑफ डेटा हाइडिंग हेल्प द प्रोग्रामर टू बिल्ड अ सिक्योर प्रोग्राम. इसमें देखो हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से डेटा हाइडिंग किससे होता है, विद द हेल्प ऑफ एनकैप्सुलेशन. दैट इज द मेन फीचर ऑफ आवर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ओके, सो दैट्स वाई वी कैन प्रोग्रामर बिल्ड अ सिक्योर प्रोग्राम. उसमें क्या होता है कि आप लोग का डेटा जो है वो एकदम सिक्योर रहेगा. ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन बेनिफिट ऑफ आवर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दैट इज डेटा हाइडिंग. ओके, देन द नेक्स्ट वन, it is possible to have a multiple instance of an object to coexist without any interference. ओके, मतलब आप लोग एक ऑब्जेक्ट का मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो. देन इट इज़ पॉसिबल टू मैप द ऑब्जेक्ट इन द प्रॉब्लम डोमेन टू दोज इन द प्रोग्राम. द नेक्स्ट है, इट इज़ ईजी टू पार्टीशन द वर्क इन अ प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट. मतलब आप लोग के जो भी बहुत बड़ा प्रोग्राम हो है, ओके, और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो यू कैन पार्टीशन द योर प्रोजेक्ट, सो यू कैन easily create that project. Okay, the next one, the data central design approach enable us to capture more detail of the model. मतलब ये जो इसमें क्या है, डेटा सेंट्रल डिज़ाइन अप्रोच, उसकी वजह से आप लोग क्या कर सकते हो कि जो हमारा प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग था मॉडल, उसमें वो डिपेंड करता था मेनली ऑन द प्रोसीजर पे. ओके, वो प्रोसीजर ओरिएंटेड था. बट ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है दैट इज़ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और उसमें मेन फोकस रहता है ऑन द डेटा. दैट्स वाई यू कैन गेट द और कैप्चर द मोर डिटेल ऑफ द मॉडल. देन दिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओरिएंटेड सिस्टम कैन बी इजीली अपग्रेड फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज सिस्टम. मतलब हम लोग ने पहले क्या किया, एक टेस्टिंग के लिए एक छोटा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम बना दिया. ओके, तो उसको मुझे अभी बड़ा करना है, देन यू कैन इजीली अपग्रेड दैट सिस्टम. देन द सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी इजीली मैनेज. मतलब जो भी सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी है, जो भी उसके कॉम्प्लेक्सिटी, तो आप लोग इजीली मैनेज कर सकते हो. ओके, सो दीज आर द सम बेनिफिट ऑफ आवर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. द मेन बेनिफिट दैट इज देयर इनहेरिटेंस, देन डेटा हाइडिंग, ओके, then data central object. These are the main benefit of our object oriented programming. Then our next topic, that is application of object oriented programming. Now
Object oriented programming is very favorable language, so which is used frequently nowadays. Now here ये जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है दैट इज़ वेरी फेवरेबल लैंग्वेज. ओके, सो इट इज़ यूज इन अ रियल टाइम सिस्टम, then it is used in simulation and modeling. Object oriented database, it is used for in hypertext, hypermedia, expert text. Then it is also used in AI, that is artificial intelligence and expert system. Then it is used in neural network and parallel programming. Then in decision support and office automation system. Then CAM, CAD, CAM system. So these are the some application of our object oriented programming. Now the enrichment of object oriented environment has enabled the software industry to improve the quality of software system, but also it is productivity. जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एनवायरनमेंट है उसे क्या रहता है कि उसकी क्वालिटी नहीं इम्प्रूव होती है सॉफ्टवेयर सिस्टम की, बट उसकी प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होती है. ओके, हियर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज certainly change the way of software engineer think, analyze, design and system. So here the object oriented programming, that is very a favorable language because they are frequently used nowadays. They are used in many applications. Okay, these are the some application of our object oriented programming. Now our next topic है C versus C++. Now here the difference between C and C++ is given. Okay, now the first point, typing discipline. Now in in C it uses the static and weak typing discipline, while in C++ it uses static, strong, unsafe and nominative typing discipline. Okay, then the next point है हमारा पैराडिगम. सी प्लस प्लस जो सी लैंग्वेज है वो प्रोसीजर सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज, मतलब वो क्या है, प्रोसीजर ओरिएंटेड. वेल दिस सी प्लस प्लस दैट इज द मल्टी पैराडिगम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जेनेसिक एंड फंडामेंटल फंक्शनल मेटा. ओके, देन जो सी है दैट इज डिजाइन बाय द डेनिस रिच एंड दिस सी प्लस प्लस दैट इज डिजाइन बाय वर्जन स्कॉट्रप. ओके, देन इन्फ्लुएंस इनटू नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन्फ्लुएंस इनटू. सी है जो इन्फ्लुएंस है इन सी प्लस प्लस, सी हैज़, जावा, लिम्बो. ओके, देन जो है सी प्लस प्लस है दैट इज इन्फ्लुएंस इन सी हैज़, देन जावा, PHP, डी. ओके, देन दूसरा पॉइंट है इन्फ्लुएंस बाय. दिस सी इज इन्फ्लुएंस बाय द BCPL, CPL. देन ओके, और C प्लस प्लस है दैट इज इन्फ्लुएंस बाय C, Simula. ओके, देन CLD, ML. देन आवर C that is appear in 1972, while this C plus plus that is appear in 1985. Then in C the garbage collection that is manual allow better management of memory. जो गार्बेज कलेक्शन होता है इन C that is done in manually. Okay, while in C++ no garbage collection is available on the C++. C++ में garbage collection नहीं होता है. देन नेक्स्ट पॉइंट है प्रोग्रामिंग इनपुट आउटपुट. देन C में हम लोग को इनपुट देना है, देन वी कैन यूज़ द स्कैनएफ फंक्शन. वेयर आउटपुट प्रिंट करवाना है देन वी कैन यूज़ द प्रिंटएफ फंक्शन. while in C++ if you want to give the input then you can use the cin, then this operator, then output देना है तो C out and this operator. Okay, so these are two methods that is used for giving the input and output in C and C++. Okay, then platform. C use in almost any platform. C can use in almost any platform. Okay, while the C++ that is also almost used in almost any thing including OS based platform. Okay, so this is the difference between the C versus C++. Here the difference between C and C++ is given. Okay, देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम. यहाँ पे देखो जो C++ प्रोग्राम है दैट कंटेन मेनली 4 सेक्शन. वहाँ पे देख रहे हैं ना आपको, मेनली 4 सेक्शन है उसके.
फर्स्ट है आपका इंक्लूड फाइल, then class declaration, then member function definition, and main function program. These are the mainly four section of our C++ program. Okay, and this four section may be placed in separate code file and then they compile and implemented or jointly. Okay, ये जो फोर सेक्शन है वो कैसे वर्क करता है, दे कैन बी प्लेस इन सेपरेट फाइल, उसको हम लोग सेपरेट फाइल में भी बन सकते हैं, सेपरेट फाइल में भी लिख सकते हैं, देन दे कैन कंपाइल एंड जॉइंट. ओके, नाउ यहाँ पे देखो, इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस टू ऑर्गेनाइज अ प्रोग्राम इनटू द 3 सेपरेट फाइल एंड द क्लास डिक्लेरेशन में प्लेस इन अ हेडर फाइल एंड डेफिनेशन ऑफ मेंबर फंक्शन गो इनटू द अनदर फाइल. मतलब ये जो हमारा C++ का स्ट्रक्चर है उसमें मेनली तो आपका 3 सेपरेट फाइल में वर्क होता है. तो क्लास का जो डिक्लेरेशन होता है वो किस में होता है, हेडर फाइल में होता है. ओके, क्लास डिक्लेरेशन दैट इज इंक्लूड इन द हेडर फाइल. और डेफिनेशन ऑफ मेंबर फंक्शन वो किस में आता है, वो दूसरे फाइल्स में आता है. ओके, सो दिस अप्रोच अनेबल द प्रोग्रामर टू सेपरेट द एब्स्ट्रैक्शन स्पेसिफिकेशन ऑफ द इंटरफेस. इससे क्या होता है, आप लोग को एब्स्ट्रैक्शन जो अप्रोच है वो स्पेसिफाई होता है. ओके, ना यहाँ पर देख लो आप लोग को एक मॉडल दिख रहा है, दैट इज क्लाइंट सर्वर मॉडल. Here the main program that is known as a client side, and this server side include the class definition and member function. So here the class definition include the function constitute of the server that provide the server to the main program known as a client. Now what is client? Client क्या है कि वो एक main function जो है that is known as a client. So this here you can see this is the structure of our C++ program. उसमें मेनली 4 सेक्शन है. कौन कौन से 4 सेक्शन है, तो इंक्लूड फाइल, क्लास डिक्लेरेशन, मेंबर फंक्शन, डेफिनेशन एंड मेन फंक्शन प्रोग्राम. ओके, और जो मेन प्रोग्राम है दैट इज कम इनसाइड द क्लास साइड, क्लाइंट साइड, एंड द मेंबर फंक्शन एंड क्लास डेफिनेशन दैट इज कम इनटू द सर्वर साइड. ओके, नाउ यहाँ पे देखो ये सिंपल C++ प्रोग्राम. ये क्या है आपका सिंपल C++ प्रोग्राम. नाउ व्हेनेवर यू राइट एनी C++ प्रोग्राम, first you have to write down the header file. So here I have written the header file that is has include iostream.h. This is the header file. Okay, then next है आपका एक वेरिएबल that is std, और उसके बाद आता है आपका मेन फंक्शन integer main. Here I want to display one message that is C++ is better than C. Okay, so you have to use the cout function to print the value on the display. So here you have to write down cout, then operator, then you have to write down the sentence in the bracket, comma. So C++ is better than C. Okay, so this is the simple C++ program to display the message C++ is better than C. To display the message or print the output, you have to use cout, and to get the input from the user you can use cin. Okay, with the operator. Then हमारा next topic है what is comment. Now here the C++ introduce a comment symbol slash. Here the slash that is used as a comment symbol. Here the slash that is used for single line command. यहाँ पे देखो आप लोग को slash दिख रहा है ना, that is used for the single line command. For example आप लोग को सिर्फ एक ही लाइन को कमेंट करनी, then you have to use this double slash. Okay, and then but आप लोग को मल्टी लाइन को भी कमेंट करना है, और तो आप लोग क्या यूज़ कर सकते हो, यू कैन यूज स्लैश स्टार, फिर जो भी सेंटेंस है फिर स्टार देन स्लैश. ओके, now our next topic that is output operator. Okay, now here you can see in our sample sample C++ program we use the cout. Now what is the use of the cout? Cout that is used for display the output statement. Okay, so here the cout then operator C++ is better than C. This statement that is used to print the output on the screen. Okay, then next है हमारा input operator.
Now here the consider the statement C in then operator name. Now what is the use of this statement? This statement is used to input the value. It causes the program to wait for the user to type in a number. Okay, जब तक यूज़र मतलब नेम टाइप नहीं कर देगा तब तक ये वेट करेगा. दैट इज़ यूज टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूज़र. यूज़र से इनपुट लेना है, देन दिस इनपुट ऑपरेटर यूज. ओके, now here the identifier cin is a predefined object in C++, then the corresponding to the standard input stream. It is the predefined object, okay, that is available in a standard input stream. Okay, and the operator that is known as a extraction or get from operator. Okay, जो यहाँ पे ऑपरेटर आप लोग को दिख रहा है ना, ये ऑपरेटर उसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्शन. And it is also known as a get from operator. Okay, so this cin that is used to take the input from the user. Then next है हमारा IO stream file. Now what is the use of this IO stream file? Now C++ program typically contain a statement like has include iostream.h. जो हम लोग ने सैम्पल C++ प्रोग्राम दिखा था उसमें हम लोग ने फर्स्ट कौन सी लाइन लिखी थी? हैज़ इंक्लूड iostream.h. okay, here the has that is stand for preprocessor directive. has क्या है? वो है preprocessor directive. The tell compiler that include the next file before compiling program. वो क्या करेगा? हैज़ इंक्लूड के पीछे हैज़ के पीछे जो भी फाइल लिखी है वो उसको इंक्लूड करेगा हमारे प्रोग्राम में बिफोर कंपाइलिंग प्रोग्राम. प्रोग्राम को कंपाइल करने से पहले वो फाइल को हमारे प्रोग्राम के साथ अटैच करेगा. ओके, हियर द हेडर फाइल iostream could be include at the beginning of all the program that cause input output statement. जो हम लोग ने अभी इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट देखे सी आउट एंड सी इन, वो किस में अवेलेबल है? इस हेडर फाइल दैट इज iostream.h. ओके, सो ये पहले क्या करेगा? कोई भी प्रोग्राम है उसको उसमें पहले वो हेडर फाइल इंक्लूड करेगा. ओके, तो हम लोग इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं. नाउ सम C++ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल दैट मे बी नीड इन C++ प्रोग्राम. यहाँ पे देखो सम हेडर फाइल्स दी गई है. फॉर एग्जाम्पल asset.h, देन float.h, math.h that is used for mathematical operation, then stdlib.h, then iostream.h, then ctype.h, limits.h, then stdio.h, then string.h. These are the some header file that is available in our C++. Okay, now this header file that is included before you compiling the program. Okay, then हमारा नेक्स्ट टॉपिक है की कॉन्सेप्ट. हियर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिफरेंट की कॉन्सेप्ट. ओके, नाउ फर्स्ट विल स्टार्ट विथ टोकन्स. नाउ व्हाट इज टोकन्स? टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन द प्रोग्राम. टोकन क्या है? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन द प्रोग्राम. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर द टोकन that can be keyword, then they can be identifier, constant, special symbols. Okay, so it is the smallest individual unit in the program. For example आप लोग को यहाँ पे दिया है एक एग्जाम्पल, integer a is equal to 5. okay, now in this statement the compiler semicolon after compilation the token are form as a. compilation के बाद टोकन कैसे फॉर्म होगा? पहले आपका इंटीजर रहेगा, वो है कीवर्ड. देन दूसरा है आपका वेरिएबल ए, देन ऑपरेटर दैट इज इक्वल टू एंड द कांस्टेंट 5 एंड द स्पेशल सिंबल that is semicolon. Okay, so these are the token in this statement that is integer a is equal to 5. So a token is just a smallest individual unit. Okay, now here the token are separated to understand the instruction and to perform the operation on it. now token की यूज होता है. ओके, टोकन की यूज़ होता है दैट इज़ यूज टू अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ होता है और ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए ये टोकन यूज़ होता है. ओके, ना अभी हम लोग क्या करेंगे? ऑल टाइप्स के ऑफ टोकन्स दैट वी एक्सप्लेन इन दिस चैप्टर. ओके, देखो फर्स्ट टोकन है हमारा कीवर्ड. नाउ व्हाट इज कीवर्ड?
The keyword are the reserved word by the language to understand the instructions basically. देखो कीवर्ड क्या है, दैट इज द रिजर्व वर्ड, मतलब ये जो हमारे सी प्लस प्लस के में इनबिल्ट ही रहते हैं, तो आप लोग एज अ वेरिएबल इस कीवर्ड को यूज़ नहीं कर सकते हो. ओके, नाउ द कीवर्ड इम्प्लीमेंट्स स्पेसिफिक सी प्लस प्लस लैंग्वेज फीचर. They are explicitly reserved identifier and cannot be used as a name for the program variable or the other user defined program element. मतलब कीवर्ड जो रहता है वो क्या है, रिजर्व वर्ड है, तो आप लोग एज अ वेरिएबल भी उसको यूज़ नहीं कर सकते, एज आइडेंटिफाई भी यूज़ नहीं कर सकते, एज अ प्रोग्राम नेम नहीं यूज़ कर सकते. दे आर द प्री डिफाइंड मीनिंग्स. ओके, नाउ इन सी कीवर्ड आर इम्प्लीमेंटेड इन सी प्लस प्लस. द कीवर्ड्स ऑफ सी प्लस प्लस आर, देखो यहाँ पे सम कीवर्ड्स दिए हैं सी प्लस प्लस के. देखो एल्स है, डबल है, न्यू, स्विच, ब्रेक, केस, ये सारे क्या है, कीवर्ड्स है. ये जो कीवर्ड्स है उसके प्री डिफाइंड मीनिंग्स रहते हैं एंड दे आर द रिजर्व वर्ड. सो यू कैन नॉट यूज दिस कीवर्ड एज अ वेरिएबल नेम एंड द अदर यूजर डिफाइंड प्रोग्राम एलिमेंट. ओके, तो नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल और आइडेंटिफायर. नाउ व्हाट इज आइडेंटिफायर? Identifier refer as the name of the variable, user-defined function, array, classes, etc. Okay, it identifies the memory location associated with the name. Now यहाँ पे देखो जो आइडेंटिफायर क्या रहता है, इट इज़ द नेम ऑफ द वेरिएबल. जो हमारे वेरिएबल, फॉर एग्जांपल हम लोग ने एक वेरिएबल लिया इंटीजर का, इंटीजर ए. ओके, तो आइडेंटिफायर क्या रहेगा, द नेम ऑफ दैट वेरिएबल. Now they are the fundamental requirement of any language. Each language has its own rule for naming this identifier. This following rules common to C and C++. मतलब जो भी लैंग्वेज है उसके फंडामेंटल वेरिएबल जो है वो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, और सारी लैंग्वेज के अपने अपने रूल्स है फॉर राइटिंग द वेरिएबल. ओके, नाउ यहाँ पे सम रूल्स दिए हैं फॉर द C++ वेरिएबल. द फर्स्ट वन क्या है कि वो ओनली अल्फ़ाबेट, कैरेक्टर, डिजिट, अंडरस्कोर, सिंबल आर परमिटेड. अब वेरिएबल में आप लोग क्या क्या लिख सकते हैं, एक तो अल्फ़ाबेट कैरेक्टर A to Z. ओके, देन डिजिट, दैट इज नंबर फ्रॉम 0 to 9. देन अंडरस्कोर, you can use the underscore symbol only for the writing the variable. For example, you can write the name 1 2 3, the name underscore 1 2 3 as a variable name. Now the name cannot start with the digit. मतलब आप लोग क्या है कि नेम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल आप लोग ने लिखा 8 देन नेम, तो ये पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम. ओके, आप लोग को लिखना है तो नेम देन 8 ऐसा लिख सकते हो आप. देन अपर केस एंड लोअर केस लेटर आर डिस्टिंक्ट. मतलब आप लोग ने अपर केस में पहले लिखा फॉर एग्जांपल ग्रेड, और दूसरा एक ग्रेड लिखा है लोअर केस में, तो दे आर वर्क एज अ डिफरेंट. ओके, डिक्लेयर कीवर्ड कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल नेम. जो अभी आप लोग ने पहले कीवर्ड्स देखे, फॉर एग्जांपल है एल्स है, स्विच है, कंटिन्यू है, वो आप लोग एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते. द नेक्स्ट वन है सी द लेंथ ऑफ द आइडेंटिफायर इज 32 कैरेक्टर बट इन C++ देयर इज़ नो लिमिट. आप लोग जो सी प्रोग्राम है उसमें आइडेंटिफायर का नेम मैक्सिमम 32 बीट का 32 कैरेक्टर का होना चाहिए, बट इन C++ देयर इज़ नो लिमिट, यू कैन राइट एनी लेंथ फॉर आइडेंटिफायर. ओके, तो ये रहा हमारा वेरिएबल एंड आइडेंटिफायर. दैट इज द आइडेंटिफायर इज रिफर एज अ नेम ऑफ द वेरिएबल. ओके, द नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज कांस्टेंट. नाउ हियर द कांस्टेंट आर रिफर टू द फिक्स वैल्यू दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. कांस्टेंट क्या है, दैट इज द फिक्स वैल्यू. जो देखो यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका जो वैल्यू है वो चेंज होता है ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, बट जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. लाइक C and C++ सपोर्ट सम टाइप ऑफ कांस्टेंट. दे इंक्लूड इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोटिंग पॉइंट मेंबर एंड स्ट्रिंग. इट कैन नॉट होल्ड द मेमोरी लोकेशन. जो ये जो है कांस्टेंट है उसका फिक्स वैल्यू ही रहता है, सो इट कैन नॉट होल्ड द मेमोरी लोकेशन. फॉर एग्जाम्पल आपको डेसिमल इंटीजर है 1 2 3, फ्लोटिंग पॉइंट यू कैन यूज 12.34 एज अ. देन ऑक्टल, ये है आपका हेक्साडेसिमल इंटीजर. देन स्ट्रिंग, देन कैरेक्टर कांस्टेंट, वाइट कैरेक्टर कांस्टेंट. ओके, सो दिस आर कॉल्ड एज अ कांस्टेंट
द वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है पर कॉन्स्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है. ओके, इट कैन बी फिक्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. फिर नेक्स्ट है हमारा बेसिक डेटा टाइप. Now here the data type in the C++ can be classified under various category. You can show here the basic data type. There can be user defined data type, then built-in data type. built-in में और कौन कौन से रहेंगे? एक तो अपने इंटीग्रल में इंटीजर एंड कैरेक्टर, देन वॉइड, देन फ्लोटिंग टाइप में रहेंगे फ्लोट एंड डबल. देन नेक्स्ट है हमारा डिराइवेड टाइप. डिराइवेड टाइप में क्या रहेगा? एरे है, फंक्शन है, पॉइंट है, रेफरेंस है. सो दिस आर द बेसिक डेटा टाइप ऑफ अवर C++. मेनली क्या है? एक तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, बिल्ट इन एंड डिराइव्ड डेटा टाइप. ओके, सो दिस थ्री आर द बेसिक डेटा टाइप ऑफ अवर C++. देखो इसमें द फर्स्ट वन है बिल्ट इन डेटा टाइप. बिल्ट इन डेटा टाइप जो है वो फर्दर डिवाइड हुआ है इन अ थ्री कैटेगरी, दैट इज इंटीग्रल, वॉइड एंड फ्लोटिंग पॉइंट. ओके, इंटीग्रल में क्या क्या आएगा? इंटीग्रल में आप लोग को इन दिस टाइप द इंटीजर एंड कैरेक्टर टाइप ऑफ द डेटा कैटेगराइज. जो भी आप लोग को इंटीजर लेना है, फॉर एग्जांपल इंटीजर A, देन कैरेक्टर है, कैरेक्टर C और कैरेक्टर जो भी है वो आप लोग को आएगा इंटीग्रल डेटा टाइप में. देन नेक्स्ट है हमारा वॉइड टाइप. द टाइप ऑफ वॉइड आर इंट्रोड्यूस इन द ASCII C. द टू नॉर्मल यूज ऑफ वॉइड आर टू स्पेसिफाई द रिटर्न वैल्यू. देन दूसरा क्या है? टू इंडिकेट अ एम्प्टी आर्ग्यूमेंट लिस्ट टू द फंक्शन. देखो यहाँ पे वॉइड कहाँ पे यूज़ होता है? वॉइड कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है? इन ASCII C. ओके, उसका यूज़ क्या है? उसके दो डिफरेंट यूज़ है. एक तो एक यूज़ है फॉर स्पेसिफाई द रिटर्न टाइप. रिटर्न टाइप आप लोग को स्पेसिफाई करना है उसके लिए. और दूसरा टू इंडिकेट द एम्प्टी आर्ग्यूमेंट लिस्ट. एम्प्टी आर्ग्यूमेंट लिस्ट डिफाइन करना है, देन यू कैन यूज़ दिस वॉइड टाइप. ओके, देन नेक्स्ट है हमारा फ्लोटिंग टाइप. फ्लोटिंग टाइप किसके लिए यूज होता है? दिस टाइप वी कैन स्टोर द रियल नंबर. आप लोग को फ्रैक्शनल नंबर रिप्रेजेंट करना है, देन यू कैन यूज दिस फ्लोटिंग टाइप. वो भी डिवाइड हुआ है फर्दर इन अ फ्लोट एंड डबल. ओके, सो ये हमारा बेसिक डेटा टाइप, दैट इज यूजर डिफाइन, बिल्ट इन एंड डिराइव टाइप. द नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टाइप कास्टिंग. व्हाट इज टाइप कास्टिंग? Typecasting refer to the changing the type of the variable temporarily. It is known as a typecasting, refer as a type conversion. मतलब फॉर एग्जांपल आप लोग ने एक इंटीजर लिया है सम. देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है आप लोग को सम, दैट इज 489. ओके, फिर आपको क्या करना है? उसका एवरेज निकालना है बाय डिवाइडिंग बाय 5. ओके, सो इन द अबव एग्जाम्पल द एवरेज वैल्यू इज एक्सपेक्टेड 97.80. वो किस में आया? उसका रिजल्ट किस में आया? फ्लोट में. ओके, तो क्या हुआ? बट इट विल रिटर्न द वैल्यू 97 बिकॉज द सम इज इंटीजर. जब हम उसका फ्लोट निकाले एवरेज निकालेंगे तो एक्चुअल वैल्यू क्या रहेगी? 97.80. बट जो हमारा सम है वो इंटीजर है, तो क्या वैल्यू रिटर्न करेंगे? 97. बट आप लोग को एक्चुअल वैल्यू लानी है, तो आप क्या करेंगे? जो टेम्पररी जो सम है उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देंगे. तो एवरेज इज इक्वल टू फ्लोट सम. तो यहाँ पे क्या हुआ? जो सम है वो टेम्पररीली फ्लोट में कन्वर्ट हो गया. ओके, सो तो ये स्टेटमेंट लिखने के बाद आपका एक्चुअल रिजल्ट आएगा, दैट इज 97.80. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ टाइप कास्टिंग. इसमें जो भी आप लोग का वेरिएबल है उसका टेम्पररीली डेटा टाइप हम लोग चेंज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने यहाँ पे सम जो इंटीजर था उसको हम लोग ने एक्चुअल रिजल्ट लाने के लिए उसको फ्लोट में कन्वर्ट किया. ओके, ओके, सो नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज टाइप कास्टिंग. टाइप कास्टिंग इज नॉट जस्ट चेंजिंग द टाइप ऑफ द वेरिएबल टेम्पररीली. ओके, देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटर इन C++. नाउ हियर C++ इज ऑल्सो इनरिच विद अ बिग सेट ऑफ ऑपरेटर. C++ में बहुत सारे ऑपरेटर अवेलेबल है. Now here you can see the few operators, that is arithmetic operator, plus, minus, multiplication, division, module. Then next है हमारा relational operator, that is less than, greater than, less than equal to, greater than equal to. Okay, so these are all the relational operator. Then next है logical operator, that is and, or. Okay, then bitwise. Then next है हमारा increment decrement operator, that is plus plus, minus minus.
then conditional operator and assignment operator. So these are the few commonly used operator available in our C++. Okay. Then the next topic है what is expression. Now what is expression? The expression are the combination of operator, constant and variable arranged as per the rules of the language. एक्सप्रेशन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर. ऑपरेटर कौन कौन से अभी हम लोग ने देखे? फॉर एग्जांपल रिलेशनल ऑपरेटर है, अरिथमेटिक ऑपरेशन है, लॉजिकल ऑपरेटर है. ओके. देन कांस्टेंट. कांस्टेंट मतलब एनी फिक्स वैल्यू. देन वेरिएबल. यू कैन यूज द वेरिएबल, फॉर एग्जांपल इंटीजर, सॉरी कोई भी वेरिएबल आप लोग ले सकते हो. ओके. So the combination of operator, then a constant and variable, that is called as the expression. Now it may also include the function call which return value. An expression may consist one or more operator and zero or more operator to produce the value. एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेटर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकता है. ओके. दैट इज़ यूज टू कैलकुलेट द वैल्यू. नाउ देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन दिया है. द फर्स्ट टाइप है कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन. Now what is constant expression? It include only the constant value. constant expression जो है उसमें सिर्फ constant value रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो 20 + 5 डिवाइड बाई 2.0. तो ये सारी constant value है ना. उस वैल्यू constant क्या है कि उसकी वैल्यू एग्जीक्यूशन में चेंज नहीं होती है. देन इंटीग्रल एक्सप्रेशन. इंटीग्रल एक्सप्रेशन आर दोज विच प्रोड्यूस इंटीजर रिजल्ट आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑल द ऑटोमेटिक एंड एक्सप्रेसिव टाइप कन्वर्जन. ओके. इसमें क्या रहता है? इंटीग्रल एक्सप्रेशन में ओनली इंटीजर इट प्रोड्यूस इंटीजर रिजल्ट, मतलब इंटीजर रिजल्ट ही प्रोड्यूस करेगा. ओके. देन फ्लोट एक्सप्रेशन. फ्लोट एक्सप्रेशन आर दोज विच आफ्टर ऑल द कन्वर्जेशन प्रोड्यूस फ्लोट पॉइंट रिजल्ट, मतलब सारे कन्वर्जेशन करने के बाद वो क्या करेगा? फ्लोट वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा. ओके. और फ्लोट वैल्यू प्रोड्यूस करेगा. देन पॉइंट एक्सप्रेशन. पॉइंट एक्सप्रेशन प्रोड्यूस द एड्रेस वैल्यू, मतलब आप लोग ने देखा इंटीजर एक्सप्रेशन में इंटीजर वैल्यू प्रोड्यूस हुआ, फ्लोट में फ्लोट वैल्यू प्रोड्यूस हुआ, और जो पॉइंट एक्सप्रेशन जो है उसमें पॉइंट वैल्यू कन्वर्ट प्रोड्यूस हुआ. सो वो क्या देगा? एड्रेस ऑफ दैट वैल्यू. ओके. देन नेक्स्ट है हमारा रिलेशनल एक्सप्रेशन. नाउ दिस रिलेशनल एक्सप्रेशन यील्ड रिजल्ट ऑफ टाइप बूल विच टेक अ वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स. वो क्या वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा? वेदर इट इज ट्रू एंड फॉल्स. ओके. देन लॉजिकल. लॉजिकल एक्सप्रेशन कंबाइन टू और मोर रिलेशन एक्सप्रेशन एंड प्रोड्यूस बूल टाइप रिजल्ट. लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या करेगा? एक और दो मतलब मल्टीपल रिलेशन ऑपरेशन जो है उसको कंबाइन करेगा. ओके. और रिजल्ट देखा इन अ बुलियन टाइप, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स. देन नेक्स्ट है हमारा बीट वाइज एक्सप्रेशन. बीट वाइज एक्सप्रेशन आर यूज टू मैनिपुलेट द डेटा एट बीट लेवल. वो क्या करेगा? मैनिपुलेट करेगा डेटा को एट अ बीट लेवल एंड दे में बेसिकली यूज फॉर टेस्टिंग और शिफ्टिंग द बीट. बीट वाइज एक्सप्रेशन मेनली कहाँ पे यूज़ होता है कि आप लोग को बीट को शिफ्ट करना है, टेस्ट करना है, देन वी कैन यूज दिस बीट वाइज एक्सप्रेशन. सो हियर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन, दैट इज कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन, इंटीग्रल एक्सप्रेशन, देन फ्लोट एक्सप्रेशन, पॉइंट एक्सप्रेशन, relational, logical and bitwise expression. Okay, so in this lecture what we learn the what is the dynamic binding, message passing, then benefit and application of our object oriented programming, then C versus C++ and the structure of C++ and different keywords that is available in our C++. Okay, so I hope you all understand today's topic. Thank you.